Of applause, Nikhil Sani. He's student of EMA's 77 batch. 77 batch. Very recent batch, I think September 2024. And after finishing his training here, he went in December to SSB. And on 22nd December, he cracked his SSB from one of the toughest boards, 18 SSB at Prayagraj. Okay, so heartiest congratulations, Nikhil. And he has come in the merit, joining OTA CDS. He's come from Jammu last night, seen off by his parents. I saw his status. Everybody was there to see him off at the railway station, and today he's reached here. And I'm so glad to see his love and affection. He's come here. I think tomorrow you're leaving. Tomorrow he's leaving for Chennai. We wish him all the best during his training, and we would like to utilize his visit here. He's got a lot of sweets for you, which we'll distribute, and we'll also give him the memorabilia of EMAS that he'll keep with them in the training. But before he goes there, we would like him to share his secret of success. Let me also share with you, this was his first attempt. And cracking SSB in first attempt is not easy. Baki, what is the reference to EMAS, he'll only disclose. How did he land up here? There's a little history behind it. Please introduce yourself and tell us how did you reach here? First of all, good afternoon, everyone. So, as MP sir has told about the reference of EMAS for me, so actually I got to know about EMAS from my sisters. So, my elder sister and my younger sister has got recommended and has taken coaching from EMAS only. And the younger one is in ND right now, and the elder one is lieutenant in the Army Intelligence Corps. Thank you, sir, for your guidance. And this was my first attempt, and I went to SSB of 18 SSB on 18th of December, and I got recommended on 22nd of December. So talking about my SSB, first of all, for the screening process, so Afsana ma'am has taught us some, lot of OIR and all. And after that, all those tips from Sandeep sir has helped me a lot. And after going home, that I figure out one thing, that where we lack is our psych part. ठीक है, क्योंकि OIR तो हम सारे कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं, घर जाके प्रैक्टिस करोगे, अब मार्केट में काफ़ी सेट्स अवेलेबल हैं DIPR के, तो इफ़ यू विल बी एबल टू डू ऑल दोस, सो इट विल बी इजी फॉर यू. एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस फॉर योर साइक वेरी रिलीजियसली. ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. तो जैसे भी सर ने सिखाया, जस्ट गो एंड इम्प्लाई ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर. So talking about my sir, first of all about screening, sir, day before my screening, so many mentioned sir from Nagaland. Okay, he was with me, sir. Okay. So he said me that I am not prepared for OIR, so please help me out. तो सर मैंने उसको 2 सेट करवाए, एंड एग्जैक्टली वही 2 सेट आ गए सर. एंड जैसे ही हमने सर OIR कंप्लीट किया, तो वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट बोथ ऑफ अस गॉट स्क्रीनिंग, एंड सर अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ही सेम ग्रुप में आ गए. दोनों फ्रेशर हैं, और सर हम हैं PR के ग्रुप में. अच्छा. तो सर थोड़ा था डिप्रेस माहौल था वहाँ थोड़ा. एंड उसके बाद सर नेक्स्ट डे हमारा साइक हुआ, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट आउट ऑफ 11 9 पिक्चर्स फ्रॉम सर एसर्ट्स 50 पिक्चर सेट. तो उसको रिलीजियसली पढ़ लेना यार, जो भी 50 पिक्चर सर करवा रहे हैं ना, एटलीस्ट जैसे संदीप सर बोलते हैं, एक पिक्चर 3 थीम, उसको कर लोगे ना, कुछ भी इशू नहीं आएगा, इजीली शेयर थ्रू कर जाओगे तुम लोग. एंड सर आई वॉज एबल टू राइट ऑल दो स्टोरीज फॉर अबाउट 15 to 16 लाइन्स ईच सर. तो मेरा इतना प्रिपरेशन हो चुका था. माई परफॉर्मेंस इन EMAS वॉज नॉट गुड. तो मेरे पास 3 महीने का बफर था. तो घर जाके मैंने ग्रुप बनाया, हम 10 लड़के थे यहाँ के साथ में, तो हमने साथ में ग्रुप बनाया, और सर हम डेली प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम. तो एक दूसरे को हम फीडबैक भी देते थे, कैसे कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. तो उसको हमने एक्सेप्ट करा, एंड अब सर उसमें से 5 रिकमेंड हो रखे हम. तो उसमें से 5 हाँ, रिकमेंड हो गए. और सर होपफुली 3 ज्वाइन करेंगे. मैंने तो मेरिट आउट हो गया. हाँ, तो अबाउट सर साइक पार्ट, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो सर थीम बता रहे हैं, तो उसको थोड़ा माइंड में रखो, बट सिर्फ उसी थीम के सहारे मत रहना, क्योंकि वहाँ पे EMAS के काफ़ी सारे बच्चे आएंगे, और कोई बताता नहीं मैं EMAS से हूँ. तो घर जा करके कुछ भी जो तुम्हारे माइंड में आइडिया आ रहा है, जो मैं अपने लिए जो मैं यूज़ करता था, मेरे माइंड में कोई भी आइडिया आ रहा था, मैं यूट्यूब पे सर्च करता था उसको. तो उसके रिगार्डिंग कोई भी मेरे को 2-4 वीडियो दिखती थी, तो एक फेयर आइडिया मिल जाता था कि किस बेसिस पे और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए पिक्चर का. और 11 पिक्चर था वहाँ पे तुम्हारे लिए. हर एक पिक्चर का एक रोल है कि हर एक पिक्चर से तुम्हारी एक क्वालिटी निकल के आ रही है. तो मेक श्योर दैट यू विल बी एबल टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क. उसके बाद वैट तो सब कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत आपस में मिलके. एंड कमिंग अपॉन सर माई इंटरव्यू, माई साइड डे एंड इंटरव्यू वॉज ऑन सेम डे सर. तो इंटरव्यू वेंट वेल. जैसे ही उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, हाँ CAQ पूछे, तो सर जब मैंने आंसर किया तो आई वॉज कॉन्फिडेंट. तो जैसे ही उन्होंने पूछा हैव यू टेकन एनी कोचिंग, मैंने बोला सर. बोलते कहाँ से, मैंने बोला सर EMAS. जैसे ही मैंने बोला स्ट्रेट वे सर न्यूज़ ठक ठक ठक. फिर मैंने बोल गया अब आप आगे मेरी रेंज में. जैसे न्यूज़, हाँ सर, वो इजराइल और उसकी पूछ रहे थे हमास की,
अपना यूक्रेन रशिया, एंड आफ्टर दैट सर रिसेंटली चल रहा था उसमें सीरिया में। तो सीरिया के सर उन्होंने सब कुछ पूछा मेरे से कि गवर्नमेंट कौन सी है, बशर अल असद, उसके पापा के बारे में सब कुछ, कैसे स्टार्ट हुआ अरब स्प्रिंग एंड ऑल दैट सर। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि सर उन्होंने फिर जोग्राफी पे आ गया आसपास की, वो भी बता दिया। तो फिर आफ्टर दैट सर ही पुट ऑन 7-8 SRTs ऑन मी, एंड जब भी मैं आंसर कर रहा था That तो means the moment you said AMR, हाँ expectations हाँ हाँ increased. सर, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई सर। तो जैसे ही मैं SRTs को आंसर कर रहा था, तो वैसे ही जैसे ही मैं कुछ आंसर कर रहा हूँ उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। बट यार काम का बोझ है ना वहाँ पे, ठीक है, सेंसिबली आंसर करना। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन की एक सेंस है। जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है तो सर मेरे माइंड में ये था कि मैं पहले इवेल्युएट करूंगा कि मेरे से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। जितनी जल्दी तुम लोग ये चीज़ इवेल्युएट कर लोगे, इतना बढ़िया तुम्हारे लिए रहेगा। हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है, हर टास्क की एक रिक्वायरमेंट है। जैसे सर बताते हैं व्हाट इज जीडी लुकिंग फॉर इन जीडी, GOR एंड ऑल दैट स्टफ। तो वैसे ही अगर तुम अपने माइंड में ये डेवलप कर लोगे कि व्हाट इज साइट लुकिंग फॉर, व्हाट इज आईओ लुकिंग फॉर, तो काफ़ी इजी रहेगा, स्मूथ रहेगा सब कुछ। उसके बाद सर नेक्स्ट डे साइट था, Video. सॉरी हाँ GTO सर। तो सर एक वहाँ पे फनी मोमेंट हो गया कि हम साइट देख सॉरी स्क्रीनिंग के दिन आए सर, अपनी बैरक्स पे आए। तो मेरे राइट साइड एक PR था मेरे ग्रुप का ही, मेरे साथ मैं नहीं है यहाँ पे हुआ। तो उसने आपकी बुक पकड़ी थी सर, वो बुक पढ़ रहा था। तो मैंने पूछा भैया बुक कौन सी है? बोलता है यार ये मास की बुक है। मैंने बोला काफ़ी नाम सुना है, होती कैसी है मास की बुक, बताओ मेरे को। बोलते यार अच्छे टिप्स हैं, ये है वो। तो मैंने सर सबको यही बोला कि मैंने कहीं से कोचिंग ली है, ये सब मैं जम्मू से लेकर आया हूँ। अगले दिन सर हमारा इंटरव्यू हुआ, मैंने का भी सेम डे इंटरव्यू। वो इंटरव्यू दे के आया सर, इतना एक्साइटेड था, एक्साइटमेंट में सभी लड़के हम साथ खड़े हैं, आके बोलता निखिल इंटरव्यू ऑफिसर आस्क्ड मी हैव यू टेकन एनी कोचिंग? मैंने बोला यस सर, आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम एमास एंड निखिल सैनी इज विद मी। और सर सभी लोग मेरे को यूं देख रहे हैं। और अगले दिन सर कोई भी मैं देखूं बोलता दिस इज प्लैंक, फट्टा बली रो, जो भी मैं देखूं उठाने के लिए फट्टा बली गायब, अंदर कोई घुसने ना दे। तो फिर मैं सोचा अब तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। तो सर मैं बाहर ही था, मैं बाहर से आइडियाज़ दे रहा था। तो मैंने बोला कैन बी सर, कोई सुन ही नहीं रहा था। तो सर हमारा PGT में ना वो आ गया था, मूवेबल स्ट्रक्चर आ गया था, तो आर्म रोटेट करनी थी, इनको समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बताया, फिर GTO नेक्स्ट में बोला कि जैसे उन्होंने सर यू कम इन, तो सर उसमें भी करवा दिया। तो GTO वगैरह सब बढ़िया गया था। अरे एक टिप मैं तुम्हें दूंगा कि जो डेटा डायरी है ना, तुम शायद इसको लाइटली ले रहे हो, हम भी अपने टाइम पे लेते थे। बट जैसे जैसे तुम आगे डेवलप करोगे ना, डेटा डायरी के जो क्रक्स पॉइंट्स होते हैं ना तुम्हारे माइंड में छप जाएंगे। कोई भी चीज़ डेटा डायरी में लिख रहे हो, उसको जाने से पहले एटलीस्ट 4 से 5 बार रिवीजन करो कि एग्जैक्ट पॉइंट तुम्हारे माइंड में आ जाए। तो मैं GDO लेक्चर के लिए काफ़ी रहता था कि यार कैसा आएगा कैसा नहीं। तो GD और लेक्चर में मेरे को इतनी हेल्प होगी कि जितनी भी न्यूज़ कवर की ना मैंने, वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे एप्लीकेबल थे। और न्यूज़ के लिए मैं तुम्हें कुछ चैनल सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट पोस्ट है कल्कि शर्मा उपाध्याय का, वो वेंटेज आता है, वेंटेज से देख नहीं पाओगे, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग यार उसका 6-6 मिनट का वीडियो आता है, ठीक है, उसको एक बार सुनो, जो बोल रही है वो भी नोट डाउन करो, जो हेडलाइन है वो भी नोट डाउन करो, ठीक है। जब तुम एक हैबिट डेवलप कर लोगे ना, दिन में एटलीस्ट 2-3 घंटे मैं देता GS को, क्योंकि एमा से मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी। साइट में मैंने कभी भी डोजियर में 8 से ज़्यादा स्टोरेज लिखी, वैट में 40 से ऊपर नहीं गया, GD में मैंने हार्डली कभी 1 पॉइंट दिया होगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो मैंने लास्ट डे में सर से पूछा कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। पहले सर ने डांटा कि ये तेरी दो बहनें अफसर हैं, मेरे को लगता है तू अफसर बनेगा। तो वो थोड़ा ईगो पे आ गया, होगा मेल ईगो, तो वो थोड़ा ईगो पे आ गया। तो फिर घर ने सर ने सजेस्ट किया कि भाई थोड़ा GS पे ज़्यादा फोकस करो। तो सर मैंने जितना कर सकता था मैंने पूरा डीपली कर लिया GS, तो मैं कॉन्फिडेंट था। हाँ सर, बढ़िया से काम आया। डेटा डायरी अच्छे से मेंटेन करो। डेटा डायरी जब खत्म होगी तो एक अलग से एक नोटबुक बनाओ अपनी, उसमें अपने लेक्चर लिखो बढ़िया से, लेक्चर नोटपैड में लिखो, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस कम है। तो बड़ी नोटबुक लगा लो, उसमें लेक्चर लिखो विद डिटेल। लेक्चर 8 सर मैं लिखता था 3-3 पेजेस के। मैंने एमा से जाते ही पहला लेक्चर लिखा, वन नेशन मनी इलेक्शन, और वही मेरे को लेक्चर आ गया था। तो जैसे ही मिला तो मैंने बोला तू बोल, मैं आ जाऊँगा अपने हिसाब से। तो जब मैं बोलने लगा सर, जो 37 की लास्ट वाला है ना, उसमें सर उन्होंने दवाई GTO ने, तब तक सर मेरा 20% भी खत्म नहीं हुआ था। फिर मैंने जंप किया जल्दी प्रोज एंड कॉन्स पे। तो जो सर यहाँ सिखा रहे हैं, सैंडी सर जो बताते हैं कि थीम, ठीक है, वैट करो, ये करो करो, उसको मजाक में मत लो। सर थोड़े जॉली नेचर के हैं, बट सीरियस पॉइंट्स हैं यार, वो उसको ध्यान में रखो, माइंड में रखो, और इजीली हो जाओगे। हाँ जी सर, हाँ सर, 11 रूल, 5 रूल से सारा निकाल दोगे यार तुम तो। 5 रूल में निकाल दोगे, 5 रूल से तुम देखोगे चल ऐसे ऐसे लगता हो जाएगा। सर कमांड टास्क थोड़ा हो गया था मेरा, तो उसमें एक मूवेबल स्ट्रक्चर था, एक स्टैटिक था। तो स्टैटिक मैंने पहले कर लिया, उन्होंने कर दिया इसको ब्लू। तो वहाँ पे हल्की सी नॉच थी सर, तो मैंने नॉच पे हाथ रख दिया रो बांधने के लिए, तो मेरे को दिखे ना। तो मेरे को बोले कमांडर यू रेडिंग आउट ऑफ टाइम, हरी अप हरी अप। तो मेंशन मेरे साथ था, तो उंगली ऐसे करे, ऐसे कि यहाँ पे है। GT ने उसको देख लिया, बोलते यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर सबॉर्डिनेट। मैंने सर हेल्प ले ली। तो अगला मूवल था वो बढ़िया से हो गया। मेरे को प्रेशर आ गया कि अब तो मैं रिकमेंड कहाँ ही हूँगा,
तो मैंने, हाँ अब तो मैंने ये कर दिया, सबॉर्डिनेट हेल्प ले ली मैंने। और सर मेरे को किसी ने नहीं बुलाया था हेल्पिंग के लिए, सिर्फ मैंने नहीं बुलाया मेंशम ने। तो फिर अगला FGT आया, तो उसमें मैंने पूरा का पूरा मैंने करवा दिया। वो आइडिया लग नहीं रहा था उसमें, मैंने बोला जेंटलमैन दिस आइडिया विल नॉट वर्क। बोलता टेक सम टाइम, इफ दिस आइडिया विल नॉट वर्क तो विल ट्राई योर्स। तो मैं सर जोर से बोल रहा अरे बोला ना दिस आइडिया विल नॉट वर्क। तो सर थोड़ा वो हो गया आगे पीछे, बट एंड में बढ़िया से हो गया, क्योंकि यार मेरा साइक और इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया था। G2 में बस मेरा कमांड टास्क अच्छा नहीं हुआ था, बाकी पूरा G2 ऐसे स्मूथ ही निकल जाएगा। ठीक है सर के 5 टिप्स ध्यान में रखना। G2 तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन प्रेशर में नहीं आना भाई, इजीली बस बोलना, वो बोलता रहेगा G2 बोलने दो, उस टाइम सोचना कि MP सर ने क्या बताया था। ठीक है बस ये दिमाग में MP सर ने क्या बताया था, 5 एम गोल्डन रूल, भाई फलक्रम ढूंढो, नहीं मिला तो बनाओ उसको, पट्टा लगाओ, रस्सी बांधो, चलो आगे। ठीक है निकल जाओ आगे भाई, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एसएस भी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट अगर रिलीजियसली तैयारी करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है यार। अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है ना, जिसकी एमास में परफॉर्मेंस इतनी डाउन थी, फीडबैक फॉर्म कर करके देखता था, सब में नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इनएडिक्वेट पार्टिसिपेशन। अगर भाई मैं रिकमेंड हो सकता हूँ तो यार तुम लोग तो बढ़िया ही होंगे। बट इस बैच का मोरल अप कर दिया तूने। इनका सबका वही हाल है। What do you think we have to disclose whether we are Hamashi and I or यार देख, I will tell you that. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन। ठीक है कुछ भी पूछ रहा ना, इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई योर आंसर वेल इनफ यार। ठीक So है many Hamachi on that side. He said. सर, एक था हमारे बैच के ही था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, 34 SSB में था सर वो मेरे साथ, उसको 11 फोटो वहाँ से आएंगे, सब कुछ हटिया गया। उसने GTO में भी झूठ बोला है और इसमें भी झूठ बोला है। GTO यार तुम जब करोगे ना पता चल जाएगा कि एमास से है। कमांड टास्क में जाओगे, कोई हाथ नहीं लाता है एमास वाले, हेलो फ्रेंड्स दिस वाइट लाइन इज माय स्टार्टिंग लाइन। ठीक है और यार बस, और मेन तो बता ही दिया मैंने आपको। जो घर जाके ना एक बार जो तुम्हारी एमास की जो फेयर नोटबुक है, एक तो होमवर्क वाली, क्लास वर्क वाली, तो उसको सीरियसली पढ़ना 2-3 बार। जैसे टैट में समोसा कॉन्सेप्ट हो गया, राम राज्य हो गया, ठीक है, वो बिरयानी वाला हो गया, चिकन वही चावल वगैरह, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। और थीम यार एक चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें कि जब मैं कोचिंग करके गया था तो मेरे को पता था कि ऐसा भी मेरे साथ काफ़ी सारे बंदे एमा से आने वाले हैं, तो सबके पास ना ऑलमोस्ट सेम थीम्स आइडिया होंगे। और हम लोग क्या करते हैं यार, थीम मिल गई है, एक्शन बना लेंगे, चलो हो जाएगा। सर मैंने घर जाके सारे के सारे थीम्स और आइडियाज इंप्रोवाइज किए सर अपने अकॉर्डिंग, सारे इंप्रोवाइज, क्योंकि मेरे को पता था यार अगर मेरे को बेशक एम आर्क्स की अगर मेरे को रिकमेंड होना है तो थोड़ा बहुत तो लेवलअप करना पड़ेगा। चीज आनी चाहिए। ठीक है थोड़ा बहुत लेवलअप करना पड़ेगा, अपनी साइड से एफर्ट नहीं डालोगे तो MP सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, घोल के तो पिलाएंगे नहीं तुम्हें। इतना पढ़ाया, पढ़ो, उसके बाद अपना लेवलअप करो यार, बढ़िया से हो जाएगा। बाकी सर एट लास्ट की जो भी सक्सेस है ये एमास को और एमास फैकल्टी एंड सबसे ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर को जाती है, क्योंकि सर उनका काफ़ी स्ट्रगल रहा है इस चीज़ में। और तो ऑल द बेस्ट टू यार, ठीक है बढ़िया से करो, बाकी एमास से हो तो हो ही जाएगा यार, टेंशन नहीं लेना। Thank you very much, Nikhil, and we wish him all the best for his training. Certainly, we will come and see you in your passing out parade, and your sisters will also be there. And do well, be careful about yourself, and do well in your training. So, to remind you of AMAS, because you use the AMAS word at least 50 times in your speech, so we should also keep you in memory and to remind you. एक और है, हम प्रयागराज में थे ना यार, वहाँ पे टेक वाले भी थे और NCC वाले भी थे, मतलब अराउंड फिगर लगा लो 50 लोग थे जो रिकमेंडेड थे, उसमें से मिनिमम टू मिनिमम 25 लोग एमास से थे। हम बैठे सर वो जलते थे कि यार एमास वाले हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। उन्होंने बोला तुम जो मर्जी करते हो, हम यहाँ बैठे हैं भाई, अब तो रिकमेंड हो गया, जो करना कर लो। और सर मैक्सिमम मेरिट ही नहीं है सर, मेंशम का कमांड टास्क इतना डिफिकल्ट था सर, उसको सर मूवेबल स्ट्रक्चर मिले 3 के 3, और सर वाइट एरिया इतना था कि नहीं सर वो उसको मेरिट आउट हो गया, वो वही समझ नहीं आया। 113 सर लास्ट टाइम उसका, किसमें NCC एंट्री सर। हाँ तो सीरियस में आने दो। हाँ सीरियस में सर हो जाएगा एक बार। सारे आ गए 418 को भी। हाँ सर मेरे बैच के यार जा रहे हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर से 5 लड़के जा रहे हैं, रूम 410 पे कौन रहता है यार, देखा नाम।